everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 4, which is about adaptations in plants. Okay, let's start the chapter. See, different areas on earth have different temperatures, they receive different amounts of rainfall and have a definite terrain. Some areas are plain, some plain, some are hilly, and many others have mountains. But all regions have some varieties of plants. We can find plants everywhere on mountains, in desert and in water as well. सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि हमारे अर्थ पे जो डिफरेंट एरियाज है वहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स देखने को मिलता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, डिफरेंट टेरेन है. कुछ एरियाज प्लेन है, कुछ हिली है एंड कुछ ऐसे भी एरियाज है जहाँ पे काफ़ी हाई माउंटेन्स है. लेकिन सभी रीजन्स पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर देयर एंड हम प्लांट्स को ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ वी कैन फाइंड. इफ देयर इज mountain, desert, water as well, we can find plants over there. Okay, so first of all, the topic is adaptations in plants. So plants growing in different regions differ from one another. The place where a plant naturally lives and grows is called its habitat. For example, a desert is a habitat for a cactus and a pond is a habitat for a lotus flower. So as we know students कि जो plants different regions में grow करते हैं वो सभी एक दूसरे से काफ़ी features में different होते हैं. एक ऐसा प्लेस, एक नेचुरल प्लेस जहाँ पे एक प्लांट नेचुरली ग्रो करता है, सर्वाइव करता है, वो प्लेस क्या कहलाएगा? उस प्लांट का हैबिटेट कहलाता है. फॉर एग्जांपल डेजर्ट. डेजर्ट क्या है? डेजर्ट एक हैबिटेट है कैक्टस प्लांट का. पॉन्ड हैबिटेट है लोटस प्लांट का. ओके, चलो. Now plants have some special features that allow them to live in a particular habitat. अब plants के पास कुछ special features होते हैं जिनके वजह से plants अपने particular habitat में survive कर पाते हैं. And इन्हीं special features को what we call adaptations, right? So now plants can be classified into two groups. अब habitat के basis पे हम plants को दो broad groups में divide करते हैं. Number one terrestrial plants, second is aquatic plants. Terrestrial plants कौन से हैं? The plants which grow on land. वो plants जो land पे grow करते हैं, they are known as terrestrial plants, and those plants which grow in water, they are known as aquatic plants. Okay, so first of all, we have to discuss about terrestrial plants and their adaptations. यानी कि वो plants जो आपके land पे grow करते हैं, जिनका habitat land area है, उन plants को terrestrial plants कहा जाता है. And सबसे पहले terrestrial plants and उनके adaptations को discuss करेंगे. So most plants grow on land. Land has a variety of habitats like forest, mountain, plains, and desert. Each of these habitats differ in their climate and factors like rainfall, altitude, that is height above the sea level. So most of the plants, ज़्यादातर plants students कहाँ land area पे grow करते हैं, and land पे भी variety of habitats are there like forest, mountain, plain, desert. हर एक habitat जो है climate के basis पर और कुछ other factors के basis पे एक दूसरे से different होता है. Okay. So now terrestrial plants can further be divided with the following groups. And अब terrestrial plants को भी आप आगे कुछ groups में divide कर सकते हैं on the basis of their habitat. Number one, plants growing on mountains, plants growing in plains, plants growing in hot, humid and damp climate. Okay. Then कुछ plants हैं which grow in desert, some in marshy areas and some in the coastal regions. So first of all, we are going to discuss regarding plants growing on mountains. यानी कि जो mountains पे plants grow करते हैं उनके क्या adaptations हैं, उनके क्या special features हैं जिनके वजह से वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में इजीली सर्वाइव एंड ग्रो कर रहे हैं. सो दीज रीजन्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड. सो माउंटेन्स रीजन्स जो है स्टूडेंट बेसिकली काफ़ी नॉर्मली कोल्ड होते हैं. मेनी माउंटेन पीक्स रिसीव स्नोफॉल इन विंटर्स एंड बहुत सारे ऐसे माउंटेन पीक्स हैं जो कि विंटर सीजन में स्नोफॉल को रिसीव करते हैं. कुछ ट्रीज ऐसे हैं हिल्स एंड माउंटेन्स पे, दे आर लाइक पाइन, फिर देवदार, स्प्रूस. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम प्लांट्स और ट्रीज विच आर फाउंड ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स. Some flowerless plants like fern, mosses and liches also grow here. Some adaptations shown by the plants growing on the mountains are given below. So कुछ flowerless plants यानी कि ऐसे plants भी जिन पे flowers नहीं grow करते, ऐसे flowerless plants भी mountain and hilly areas में grow करते हैं like fern, mosses and lichen. Okay, now what are the adaptations of these plants? Number one, trees are tall, straight and thin. So mountain या hilly areas में जो trees grow करते हैं वो काफ़ी tall, straight and thin होते हैं. Instead of flowers, they bear cones with seed inside them. So जो plants और trees which are there in hilly areas उन पे instead of flowers यानी कि इनमें flowers ना होकर इन trees में कुछ cones होते हैं जिनके अंदर seeds होती हैं. Okay, they are usually conical in shape. Okay, यहाँ पे जो plants हैं वो कैसे conical shape के होते हैं so that कोई भी चीज़ हो, for example snowfall हो रही है तो वो easily इनकी leaves के ऊपर से slide off कर जाए. And the conical shape की वजह से they are also known as conifers. The leaves are thin, tough and riddled with a waxy coating to prevent damage from snow. इनकी leaves thin,
टफ एंड निडल जैसी होती है, इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जो इनको प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है टू गेट डैमेज फ्रॉम द स्नो. द लीव्स हैव फ्यू स्टोमेटा टू प्रिवेंट वाटर लॉस, एंड यहाँ पे जो प्लांट्स हैं इनमें स्टोमेटा भी बहुत कम होते हैं, सो दैट वाटर लॉस काफी कम. ओके चलो, नेक्स्ट इज प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स. अब प्लेन एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम. सो जनरली प्लेन्स आर नाइदर कोल्ड, very cold nor very hot. They support the growth of a variety of trees, herbs and shrubs. So generally जो trees और plants plain area में grow करते हैं, okay, वो उनपे variety of trees, herbs, shrubs हमें वहाँ देखने को मिलेंगे, because plains ना तो बहुत ज़्यादा cold temperature वाले areas हैं and ना ही बहुत ही hot temperature वाले area हैं. Example of some trees which grow in plain area, that is peepal, mango, banyan, gulmohar, cotton and shisham. अब कुछ इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस यहाँ पे गिवन है. नंबर 1, ट्रीज हैव मेनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड अराउंड. ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन एरियाज के ट्रीज होते हैं इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है जो इनके सराउंडिंग में क्या स्प्रेड हो जाती है. नेक्स्ट, द लीव्स आर मेनी फ्लैट एंड थिन विच हेल्प इन द इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर कीपिंग द प्लांट कूल. एंड इन प्लांट्स में जो ट्रीज होती है, नंबर ऑफ लीव्स इन ट्रीज में जो होती हैं वो काफ़ी सारी होती हैं, फ्लैट एंड थिन होती है, जो कि काफ़ी एक्सेस वाटर को इवेपोरेट होने में हेल्प करती है, सो दैट प्लांट क्या रहे, कूल रहे. ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स कैन सर्वाइव इन हॉट वेदर कंडीशन. बहुत सारे तो इनमें ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हॉट वेदर कंडीशंस में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. एंड ट्रीज शेड देयर लीव्स जनरली इन ऑटम एंड न्यू प्लांट्स ग्रो इन स्प्रिंग सीजन. एंड प्लेन एरियाज की ट्रीज जो है यूजुअली ऑटम सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं एंड स्प्रिंग सीजन में अगेन उनमें न्यू लीव्स ग्रो करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट, ह्यूमिड एंड डैम्प क्लाइमेट. हॉट, ह्यूमिड एंड डैम्प क्लाइमेट में कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं. So some land regions are extremely hot and humid. Plants like teak, rubber pepper, coffee, tea and sugar can grow in such regions. And here are some adaptations shown by the trees of such regions. So student, कुछ ऐसे भी land regions हैं जो बहुत ज़्यादा hot and humid होते हैं and वहाँ पे जो plants grow करते हैं they are teak, rubber, pepper, coffee, tea and sugar cane. So वहाँ पे grow करने वाले trees के क्या क्या adaptations हैं. Number 1, ये trees हमेशा evergreen होते हैं, यानी कि they never shed their leaves. Okay? Then leaves are arranged in an angular manner on the branches so as to get maximum sunlight. Leaves जो है एक angular manner पे arrange होती हैं branches पर so that उनको maximum sunlight वो receive कर सके. Plants have lot of leaves. यहाँ के जो plants होते हैं उन पे काफ़ी सारी leaves होती हैं and leaves flat and thin होती हैं जो कि transpiration process में helpful होती है and transpiration helps in keeping the plant cool. And transpiration process ज़रूरी है क्योंकि ऐसे hot and humid region में plants को cool रखने के लिए transpiration process ही helpful होता है. ठीक है. Then plants growing in deserts. अब desert area में कैसे plants grow करते हैं? Let's discuss about them. Number 1, extremely hot and dry places are called desert. जो बहुत ज़्यादा extreme hot and dry place होगा उसको आप desert बोलोगे. And desert में there is very little water available. बहुत ही कम पानी वहाँ पे available होता है. Cactus, date, palm, babool, कीकर, ये कुछ plants हैं which can be found in a desert. And desert plants को हम xerophytes भी बोलते हैं. So what are the adaptation shown by the desert plant? Number 1, leaves change into spine to prevent water loss by transpiration. इन plants के जो leaves हैं वो spine में change हो जाते हैं so that transpiration process के through इसमें water loss ना हो. Then the stem in some plant is green due to the presence of chlorophyll. The stem prepares food in such plant. ऐसे plants में जो stem वाला part होता है वो green color का होता है chlorophyll की presence की वजह से. And इन plants में जो food prepare किया जाता है वो stem वाले part में ही prepare किया जाता है. The stem also stores food and water which makes it fleshy. ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स में जो स्टेम वाला पार्ट है वही फूड एंड वाटर को स्टोर करता है जिसकी वजह से इन प्लांट्स की स्टेम काफी फ्रेशी होती है. एंड रूट्स स्प्रेड आउट डीप अंडर द ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. एंड इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा डीप अंडर द ग्राउंड जाकर स्प्रेड होती हैं सो दैट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को इजीली फाइंड आउट कर सके. देन प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज. अब मार्शी एरियाज में कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं? सो वाटर लॉक्ड प्लेसेस, जो वाटर से मतलब पानी से हमेशा लॉक्ड रहते हैं ऐसे प्लेसेस को स्वैम्प और मार्शेस कहा जाता है. एंड जो मार्शी एरियाज की सॉइल होती है दैट इज क्ले, स्टिकी एंड कंटेन्स लेस एयर. ओके, सो द प्लांट दैट मोस्टली ग्रो इन मार्शी एरियाज एंड मैनग्रोव्स. एंड वो प्लांट्स जो मोस्टली मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं उनको मैनग्रोव्स कहा जाता है. कुछ मेन अडेप्टेशंस है विच आर शोन बाय द मैनग्रोव्स. दैट इज roots grow out of the soil to breathe as the clay and sticky soil does not allow the roots to breathe and these roots are called breathing roots. So students, जो मार्शी एरिया से जो मैनग्रोव्स प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल से बाहर आके ग्रो करती हैं सो दैट वो इजीली ब्रीथ कर सकें बिकॉज जो स्टिकी एंड क्लेई सॉइल होती है मार्शी एरिया की
वो प्लांट्स को अलाउ नहीं करती है, प्लांट्स की रूट्स को अलाउ नहीं करती टू ब्रीथ, एंड इसीलिए इन प्लांट्स की रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स भी कहा जाता है. रूट्स हैव टिनी पोर्स. इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें काफी सारे टिनी पोर्स या ओपनिंग्स होती हैं एट द टिप्स. देयर प्लांट्स इन द कोस्टल रीजन्स. अब कोस्टल रीजन्स के प्लांट्स कैसे होते हैं? सो द सॉइल इन द कोस्टल रीजन इज सैंडी. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कोस्टल रीजन के सॉइल होती है वो सैंडी होती है, एंड जो टेम्परेचर है यहाँ का काफी हाई होता है, एयर आपकी ह्यूमिड होती है, एंड कोकोनट ट्री इज द मोस्ट कॉमन ट्री सीन इन द कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन में सबसे कॉमन ट्री जो देखा जाता है दैट इज कोकोनट ट्री. Now there are adaptations of these plants. Number one, leaves are thin and long, allowing the strong winds to pass through them without causing excess damage. So students, इन plants की जो leaves होती है काफी thin and long होती है, so that जो strong winds है, हवा चलती है जो बहुत strong वाली, वो easily इनके through pass हो जाए, ज़्यादा damage बिना पहुंचाए. ठीक है? Then the tree trunk is strong and flexible. यहाँ के trees का जो trunk वाला part है वो काफी strong and flexible होता है. And long and deep roots penetrate deep underground in search of water. And इनकी roots भी काफी long and deeply under the ground penetrate करती हैं in search of water. So these were all the different types of terrestrial plants with their adaptations. And now we come to the topic that is aquatic plants and their adaptations. So as we have discussed earlier also, what are aquatic plants? The plants which live in water. वो plants जो water में रहते हैं, वहीं survive करते हैं, grow करते हैं, उन plants को aquatic plants कहा जाता है. Okay, the plants growing in water are called aquatic plants. And अब aquatic plants भी different types के होते हैं. Number one, free floating plants. Second is fixed floating plants or fixed aquatic plants. And third is submerged plants or underwater plants. Okay, so now first of all we have free floating plants. So some plants like water hyacinth, duckweed and wolfia and pistia float on water. So ये कुछ plants हैं like water hyacinth, duckweed, wolfia, pistia. ये सभी ऐसे plants हैं जो water के surface पे float करते हैं. And in plants के पास कुछ adaptations होते हैं. Number one, most of these plants are small in size. So most of the free floating plants कैसे होते हैं? Small size के होते हैं. इनके पास light and spongy bodies होती है because of air spaces between their set. And इसकी वजह से ये plants easily float कर पाते हैं. Then stems जो इनके reduced होती हैं, roots are well developed and leaves have a thin waxy coating. Okay? Then now next we come to what? Fixed floating plants or fixed aquatic plant. So some of the water plants like water lily and lotus are fixed to the bed of a pond, whereas the rest of the plant body keeps floating, and such plants are called fixed floating plants. So students, कुछ ऐसे भी water plants है, for example water lily, lotus, जिनकी जो रूट वाला पार्ट है वो तो पॉन्ड के बेड यानी कि बिल्कुल नीचे फिक्स्ड होता है, एंड जो बाकी बॉडी है वो बाकी प्लांट बॉडी का वाटर सरफेस पे ऊपर फ्लोट करती है. ऐसे प्लांट्स को फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स कहा जाता है. Now, what are the adaptations of these plants? Number one, stems are light and hollow to enable leaves and flowers to float. इनकी जो stems होती हैं वो stem वाला part काफी light and hollow होता है, अंदर से खोखला होता है, इसी वजह से इनकी leaves and flowers easily float करती हैं. Then leaves are broad with a thin waxy coating that prevents them from rotting. इनकी leaves काफी broad and उसके ऊपर एक waxy coating होती है जो इनको rotting यानी कि पानी में हमेशा रहने की वजह से ये damage हो सकती है, rot हो सकती है, उससे prevent करती है वो waxy coating. Then leaves have stomata on the upper surface to breathe easily. इनकी leaves पे जो stomata होता है वो ऊपर वाले surface पे होता है. Otherwise बाकी सब plants की leaves में stomata on the under side, नीचे होता है ना? Under side is there. लेकिन जो fixed floating plants है उनकी leaves पे stomata is on the upper surface so that they can breathe easily. And roots are fixed to the bed of the pond. And इनकी roots कहाँ? Pond के जो bed वाला part है, bottom वाला part है, वहाँ fixed रहती है. Then submerged plants or underwater plants. These plants grow and remain underwater. अब ये plants वो हैं जो कि क्या grow भी underwater करते हैं, वहीं रहते भी हैं. ठीक है, जैसे कि tape grass, pondweed, seaweed, hydrilla. These are the example of such plants. Now, what are the adaptation shown by these plants? Number one, the leaves arise in clusters from the roots and do not have any stomata. Okay, इनकी leaves कैसे roots में से clusters की form में arise होती हैं and इनकी leaves पे कोई भी stomata नहीं होता है. Okay. Then they have long ribbon-like narrow leaves. इनकी जो leaves है काफी long and ribbon जैसी shape की होती है. They breathe in carbon dioxide through their body surface and give out oxygen in the water. ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं अपने बॉडी सरफेस के थ्रू एंड ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं वाटर के अंदर ही बॉडी सरफेस से ही थ्रू बिकॉज दे डू नॉट हैव स्टोमेटा एंड दे हैव स्मॉल रूट्स एंड इनकी रूट्स भी काफी छोटी छोटी होती. ओके, नाउ Now the next topic is some special adaptations. अब कुछ special adaptations को discuss करते हैं. There are some plants which show some special adaptations either to protect themselves or to get enough nutrition.
सो कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पास कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं, या तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या एनफ न्यूट्रिशन ड्राइव करने के लिए. Okay, so now the topic is insectivorous plants. So there are some plants which eat insects and they are called insectivorous plant. So students, कुछ ऐसे भी plants हैं जो कि insects को खाते हैं and इसीलिए इन plants को insectivorous plant कहा जाता है. Example, pitcher plant, Venus flytrap. These क्या हैं आपके insectivorous plants से example है. You can see in the picture, this is pitcher plant and this is Venus flytrap. First of all, we are going to discuss about pitcher plant. So the leaves of pitcher plant form hollow tubes with a lid called pitcher. Insects are attracted by the colorful marking, delicious smell and sticky nectar of the plant. The pitcher hangs with the lid open. When an insect enters, the pitcher lid closes. Once inside the pitcher, the insect is digested by the digestive juices of the plant and this digested food is then absorbed by the plant. So student, ये pitcher plant की leaves होती हैं जो एक hollow tubes अंदर की एकदम अंदर से खाली tubes की तरह structure बनाती हैं. इनके ऊपर एक lid होता है जिसको हम pitcher कहते हैं. अब इंसेक्ट्स क्या, इन पे इनकी जो मार्किंग होती है बाहर से, आप देखो बहुत कलरफुल सी मार्किंग होती है इनके बाहर पे, ठीक है, डिलीशियस स्मेल एंड एक स्टिकी सा नेक्टर होता है इन प्लांट का जिसके टूवर्ड्स इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं. जैसे ही इंसेक्ट्स या जो पिक्चर का लिड है वो हमेशा ऐसे ओपन रहता है. कोई भी इंसेक्ट जब इसके नेक्टर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होकर इस पे जाके बैठता है, अंदर एंटर करता है, पिक्चर का जो लिड है वो क्लोज हो जाता है. जैसे ही एक बार पिक्चर का लिड क्लोज हुआ, अब इंसेक्ट अंदर क्या होगा, वो प्लांट कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेगा जिसकी वजह से वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाएगा इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट. ओके, चलो इस तरीके से ये प्लांट क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फूड को फिर एब्जॉर्ब कर लेता है. नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप. दिस प्लांट हैज स्टिकी हेयर्स ऑन द मार्जिन व्हिच एक्ट लाइक ट्रैप. अब ये प्लांट क्या है, इस प्लांट के मार्जिन वाले एरिया पे कुछ स्टिकी से हेयर्स होते हैं जो एक ट्रैप की तरह काम करते हैं. When an insect sit on its leaf, the trap shut. The insect is then digested with the help of digestive juices of the plant. जैसे ही कोई इंसेक्ट इसकी लीफ पर आके बैठता है, ये ट्रैप क्या हो जाता है, शट यानी कि बंद हो जाता है एंड इंसेक्ट अंदर डाइजेस्ट हो जाता है उन डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से जो प्लांट सीक्रेट करते हैं. ओके, चलो. सो नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स विद थॉर्न्स. अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन पे थॉर्न्स यानी कि कांटे होते हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स लाइक रोज, बोगनविलिया एंड मेनी अदर प्लांट्स व्हिच हैव थॉर्न्स व्हिच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है, तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, रोज, बोगनविलिया, काफी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिन पे थॉर्न्स यानी कि कांटे होते हैं जो इनको एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं. द नेक्स्ट वी हैव प्लांट्स विद पॉइजन. अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें पॉइजन होता है. ठीक है, सो मेनी प्लांट्स लाइक द पॉइजन ईवी हैव पॉइजन इन देम. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, एग्जांपल पॉइजन ईवी. ये आपका पॉइजन ईवी प्लांट है जिनमें पॉइजन होता है एंड दिस कीप्स एनिमल्स अवे फ्रॉम देम. एनिमल्स कैन स्टार्ट इचिंग ऑन टचिंग द पॉइजन ईवी. एंड ये जो पॉइजन वाले प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल से. एनिमल्स इनसे दूर रहते हैं बिकॉज अगर कोई भी एनिमल की स्किन इन प्लांट्स को टच करेगी, फॉर एग्जांपल पॉइजन ईवी की लीव्स को अगर टच कर लिया तो क्या उन एनिमल की स्किन पे इचिंग फील होनी स्टार्ट हो जाएगी. ओके, चलो. द नेक्स्ट इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. सी, some plants do not have chlorophyll and are not green in color. They cannot make their own food. They absorb food from dead plants and animals and these plants are called saprophytic plants. So students, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि वो ग्रीन कलर के नहीं होते एंड क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो ये क्या करते हैं, ये कुछ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं एंड इस तरीके से इन प्लांट्स को सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहा जाता है. For example, coral root, Indian pipe, these are the examples of what? Saprophytic plant. Now next topic which we have is grass family. Do you know that all cereal plants belong to the grass family? जितने भी cereals हैं वो सब grass family को belong करते हैं. Example, wheat, rice, ज्वार, maize, ये सभी क्या हैं, cereals हैं. Other than cereals, sugarcane, bamboo and fodder are also members of the grass family. And cereals के अलावा sugarcane, bamboo and fodder ये भी grass family के ही members हैं. So कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन प्लांट्स के जो कि ग्रास फैमिली में होते हैं. दे हैव बीन डिस्क्राइब. नंबर 1, देयर स्टेम्स आर हॉलो एक्सेप्ट ऑल द नोड्स. ओके, इनकी जितनी भी स्टेम है वो सारी हॉलो होती हैं एक्सेप्ट जो नोड वाला पार्ट है यानी कि जो जॉइंट वाला पार्ट है उसको छोड़कर. ग्रास लीव्स आर लॉन्गर देन देयर विड्थ एंड पार्ट्स ऑफ देम आर रैप्ड अराउंड द स्टेम. ग्रास की जो लीव्स होती हैं काफी लॉन्गर होती है उनके विड्थ के कंपेरिजन में एंड उनके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या अराउंड द स्टेम रैप्ड होते हैं. दीज प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस. ये काफी यूजफुल है. ओके, इनके कुछ यूजेस हमें गिवन है. नंबर 1, बैम्बू इज अ जॉइंट ग्रास. बैम्बू एक जॉइंट ग्रास है, इसको यूज किया जाता है बास्केट, चेयर, मैट बनाने के लिए. बैम्बू की शूट में एक हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जिसको बहुत सारी डिशेस बनाने के लिए यूज किया जाता है इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. ओके, चलो. देन सम ग्रासेस आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन. कुछ ग्रासेस को मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है. ड्राइड ग्रास को एज अ पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है.
शुगर को हम शुगर केन से ऑब्टेन करते हैं. वी यूज अ सीरियस राइस, व्हीट, रागी, इन सभी को एज अ फूड हम यूज करते हैं. एंड रूट्स ऑफ ग्रासेस बाइंड द सॉइल वेल एंड हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. एंड ग्रासेस के जो रूट्स हैं वो सॉइल को बहुत अच्छे से बाइंड करके रखते हैं, जिससे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में हेल्प मिलती है. ओके, चलो. So the chapter is completed. That's all for today. I hope you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.